Starting with rotational motion, lecture number 2. Okay. See, I start with the concept of radius of gyration. Radius of gyration denoted by the letter K. क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? हमने बात सुन लो. लास्ट टाइम हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था. What is moment of inertia about this axis? Please pay attention. Suppose this axis is rotating and these are all the particles. Yes. Can I say this particle is m1? It will move in this radius. This particle, let it be m2, moving in this radius about this circle. This particle, let it be m3, moving in this circle about this radius. So can you tell me what will be the moment of inertia of this system of particles? We know it last time, m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square. This is for a system of particles. System of particles का moment of inertia about this axis is m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square. Now suppose I take the same axis. I take the same axis, rotating, about angular velocity omega, and I concentrate this mass into a single point. मतलब क्या, ये सब मास को अगर मैं जोड़ दूं और एक पॉइंट बना दूं, एक मास बना दूं, let the mass be m. मतलब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डॉट 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 mn को मैंने जोड़ के एक मास बनाया. I keep that mass m. What is this mass equal to? Are you understanding? At a distance of k from the axis of rotation. समझ में आ रही है बात? Just imagine this. Okay. ये सब masses को जोड़ के मैंने एक mass ऐसे बनाया which is at a distance of k from the axis of rotation. What will be moment of inertia for a single particle का formula? Mass into distance square. So what will be moment of inertia of this? Perfect. M. बोलो 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 m k square. यही चीज हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल से निकाली थी. तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर. यही चीज हमने k के फॉर्मूला से निकाली. इट इज m k स्क्वायर where k is termed as radius of gyration. What is radius of gyration defined as? सुनना अभी, इधर ध्यान देना. Radius of gyration is defined as the distance between the axis of rotation and a point where the whole mass of the body is concentrated. What is the radius of gyration defined as? The distance between the axis of rotation and a point where the whole mass of the body is concentrated so as to give the same moment of inertia as that of the entire body. Means what? This I answer and this I answer is the same. Therefore this distance is called as radius of gyration. Concept क्या है कि ये सब मास को जोड़ो, एक सिंगल पॉइंट में बना दो m, उसको k डिस्टेंस पे रख दो एक्सिस से. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा सिंगल पार्टिकल का? m k स्क्वायर. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था. इसका आंसर एंड इसका आंसर शुड बी द सेम सो दैट दैट डिस्टेंस इज k. Okay. What is moment of inertia for a system of particles? m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square. ये सब मासेस को हमने जोड़ा, एक m बनाया, उसको एक डिस्टेंस k पर रखा ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रीवियस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए. एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज k. फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज k, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ k. ये सब करने की जरूरत क्या है सर? एवरी डे यू विल मेक न्यू टर्म्स अवॉइड. हम बता दें क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका. पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ k? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point
where the whole mass of the body is concentrated so as to give the same moment of inertia as that of the entire body. Again, last time. What is the radius of gyration defined as? Come on. It's defined as the distance between the axis of rotation and a point where the whole mass of the body is concentrated so as to give the same moment of inertia as that of the entire body. मतलब इसका answer of I and इसका answer of I is the same. Sir, why have you invented K? Can I write K का formula as under root of I by M? This is very important for me. Can I say a greater value of K indicates mass is distributed away from the axis of rotation? A greater value of K will indicate mass is distributed away from the axis of rotation. That means K will be more. And if K is more, is proportional to root I, na? So if K is more, Baba, I will be more. And if I is more, moment of inertia is more, that body is difficult to start and difficult to stop. And can I say if the mass is distributed near to the axis of rotation, K is less. And if K is less, I is also less. Easy to start and easy to stop. मैं एक example देता हूँ. Suppose रोड पर हम दो टायर्स ले लें, एक छोटे बच्चों का बाइसिकल का टायर और एक बड़ा बाइसिकल, हम ये टायर लेते हैं. कैन आई से यहां पे द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक्सेस है ना बेटा, ऐसे घूम रहा है. कैन आई से यहां पे द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन and यहाँ पे the mass is distributed away from the axis of rotation, तो इसका K will be more and इसका K will be less, so इसका moment of inertia will be less and इसका moment of inertia will be more. Easy to start, easy to stop. बच्चों का साइकिल जल्दी से स्टार्ट भी हो जाएगा, जल्दी से रुक भी जाएगा. कंपैरेटिवली बड़ों का साइकिल लेट स्टार्ट होगा और लेट रुकेगा. Are you understanding my point? So this has K less because mass is distributed near to the axis of rotation, and this has K more where this will be mass is distributed away from the axis of rotation. Are you understanding what's happening? Okay. So K is the radius of gyration. It signifies distribution of mass with respect to axis of rotation. You understanding? Okay. Suppose I take a solid sphere and a hollow sphere of the same mass and the same radius. मतलब दोनों का m और r क्या है? सेम है. किसमें मास का कंसंट्रेशन दूर है अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे. रिंग नहीं है बेटा, ये होलो स्फीयर है. होलो स्फीयर पता है? होलो स्फीयर मतलब मास इज कंसंट्रेटेड वेयर? एट दी पेरिफेरी, अंदर से खाली है. तो किसका K ज्यादा रहेगा बेटा? होलो स्फीयर का K ज्यादा रहेगा. तो K अगर ज्यादा है तो I ज्यादा है. देख के तो पता नहीं लगता ना हमको सिर्फ एक पॉइंट याद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस. अगर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, K इज मोर, I इज मोर, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप. इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप. सीटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक हॉलो बॉल और एक स्फेरिकल बॉल हमने लिया, एक भरा हुआ लिया और एक खाली लिया, सेम मास एंड सेम रेडियस. हमने दोनों को रोल किया ग्राउंड पर. कौन जल्दी रुक जाएगा? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन इसको जल्दी से रोक देगा और इसको ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, तो ये ज्यादा टाइम लगाएगा रोकने में, बिकॉज इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर एंड डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप. समझ में आ रही है बात? तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहचानेंगे हम कैसे? है K से. Lastly, I'll revise again. Moment of inertia for a system of particles was m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot mn rn square.
we define a term k which is called as radius of gyration. Radius of gyration is defined as the distance between the axis of rotation and a point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to give the same moment of inertia as that of the entire body. मतलब इस answer and इस answer is the same. A greater value of k indicates more moment of inertia is difficult to start and difficult to stop the body, and a lesser value of k indicates lesser moment of inertia, easy to start and easy to stop. ओके मैंने आपको एक शुगर केन जूस वाले का एग्जांपल लास्ट टाइम दिया था, आप जाके शायद देखे रह गए, आई डोंट नो. शुगर केन जूस वाले के पास जो रोलर्स होता है उसके साइड में जो रिंग लगा हुआ रहता है वो ऐसे होता है. इट इज नॉट अ डिस्क, इट इज अ रिंग. ऐसे रिंग होता है ना भैया, जाके देखना यार फिर से है. किसका केस ज्यादा अभी समझ में है? अभी और समझ में है? के ज्यादा, आई ज्यादा. आई ज्यादा डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप. इसके लिए हमारे बाइसिकल के जो टायर्स होते हैं वो भी ये शेप में होते हैं ना. अगर डिस्क के शेप में हो हमारे टायर्स मोटर बाइक के तो एक पत्थर आएगा रुक जाएगा. इसके लिए ये रहता है, रिंग के शेप में रहता है. डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू स्टॉप. ऐसे स्पीड ब्रेकर पे रुक जाएगा वरना ये तो. Understand what's happening? This is easy to start and easy to stop, and difficult to start and difficult to stop because all the masses are located where? Away from the axis of rotation. Greater value of k is there. Have you all understood radius of gyration correctly? So fine. So this is radius of gyration. Okay, now हम डिफाइन करते हैं ओके. लुक ओवर हियर ना. mi depends on how many things? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के किस चीजों पर डिपेंड करती है? हमने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि जब आप बॉडी लीनियर मोशन में चलते हो, लीनियर मोशन में जब चलता है कोई, तो इस चीज का इनर्शिया होता है मास. होली सोली मास इज अपोजिंग. whenever you want to move a body linearly the opposition is mass, but whenever you want to rotate a body, okay, who is the opposition? Moment of inertia. And we have revised that golden statement that greater is the moment of inertia, difficult to start, difficult to stop. Lesser the moment of inertia, easy to start and easy to stop. वैसे ही अभी हम पढ़ेंगे moment of inertia depends upon whom. सबसे पहले it depends on mass of the body, but it is not whole and sole mass. Mass is a part of moment of inertia. It is mr square ना बेटा. So it is not whole and sole mass like linear motion. खाली mass नहीं है, mass है, part है उसका. Second and the most important thing is distribution of mass with respect to axis of rotation. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर मास दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका k बढ़ जाएगा, k बढ़ जाएगा, i बढ़ जाएगा, डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप हो जाएगा. एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन नजदीक है, उसका k छोटा हो जाएगा, उसका i भी छोटा हो जाएगा, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप. बात समझ नहीं आ रही है? ओके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं. सबसे पहले एग्जाम्पल सुनिए, ये सब एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं. एक दरवाजा है, हमारा जो क्लास का दरवाजा है, नॉर्मल दरवाजा. हम उसको ये एक्सिस पर घुमा रहे हैं. हिंज इधर ही लगेगी ना. या तो हम और एक दरवाजा लेते हैं सेम और हम उसको ये एक्सिस पर घुमाते हैं.
कोई बता सकता है किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है? फर्स्ट वन में ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेकेंड में वाई? बिकॉज यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज मोर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस. यहां पे मास फैला हुआ है ना भाई, तो यहां पे I1 इज ग्रेटर देन I2. It's difficult to start, difficult to stop. Easy to start, easy to stop. समझ में आ रही है दिमाग में बात? Mass is distributed near to axis of rotation. ऐसे सीटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, अलग अलग एक्सेस बना के देते हैं कि भाई किसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो हमको देखना है कि जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड अवे होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, और जिसमें मास नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? कम रहेगा. ये एक एग्जांपल हमने दिया. सेकेंड एग्जांपल आई कैन गिव यू ऑफ द hollow sphere and the solid sphere. Same. You take a solid sphere and you take a hollow sphere, roll it. Same. Moment of inertia for hollow sphere is more than moment of inertia for solid sphere. तो वो देर से रुकेगा ना hollow sphere. और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया. एक एग्जांपल हमने आपको लास्ट टाइम दिया था of the boiled egg and the raw egg. सुनो बात सुनो इधर. ओके, इसको हम घुमा रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस. बॉइल्ड एग इज टोटली सॉलिड इनसाइड, राइट ना? तो अगर टोटली सॉलिड है तो इसके ऊपर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा तो नथिंग ऑफ द मास विल मूव आउटसाइड. बट दिस इज लिक्विड लाइक एल्यूमिनियम एंड योक, राइट? तो वो पूरा जितना लिक्विड है दैट विल बी एक्टेड बाय अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड ऑल ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लिक्विड विल बी कमिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी. So now whose distribution of mass is more with respect to axis of rotation? Rho egg. So difficult to start and difficult to stop. So he will take more time to stop. He will take less time to stop. What is the statement, man? Distribution of mass with respect to axis of rotation. One more example I'll give you. अर्थ है, ये एक्सिस है. सब आइस कहां पर जमा हुआ है अभी फिलहाल? पोलर आइस कैप ना, यहां पर और यहां पर है, ये घूम रहा है. So where is the mass distributed? Near to the axis of rotation or away to the axis of rotation? Near. Suppose global warming के कारण सब आइस मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो रहा है, ओके? सब जगह बाढ़ जो आ रही है वो उसके कारण ही आ रही है. आइस मेल्ट हो गया एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो सब पानी कहां जाएगा? टुवर्ड्स द इक्वेटर, ऐसे नीचे उतरेगा. सो कैन आई से दिस ऑल मास ऑफ द अर्थ इज कमिंग हियर? क्या हुआ? आई बढ़ा के कम हो गया? आई बढ़ गया. आई यहां पर कंपैरेटिवली कम था, आई यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा है, आई बढ़ गया. तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप. कैन आई से इसका टाइम पीरियड भी बढ़ गया आपका, और आपका स्पीड स्लो हो जाएगा ना. हम आपको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे कैसे स्लो हो जाएगा, बट दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. बट अभी फिलहाल याद रखो इसका टाइम, टुडे टाइम इज 24 आवर्स, 25 आवर्स. ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये होता है. हमारे को सिर्फ पंच लाइन कौन सी याद रखनी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट्स हैपनिंग? If the mass is distributed away from the axis of rotation, K is more, I is more, difficult to start, difficult to stop. And when the mass is distributed near to the axis of rotation, K is less, I is less, easy to start and easy to stop. Clear हो गया एकदम? कोई भी क्वेश्चन आए अभी तुम लोग क्रैक कर सकते हैं. Yes or no? Any question comes, concept is this. Third case. Orientation of axis of rotation.
सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हमने बदल दिया, मतलब क्या, ये बॉडी है, ये ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस पर घूम रही है ना बेटा, इसको मैं सपोज ऐसे घुमाऊं, एक्सिस बदल गया, जो एक्सिस ये हुआ करता था अभी वो एक्सिस ये हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। जब आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन ही बदल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। हाउ इट कम्स आई विल टेल यू। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट्स हैपनिंग? So when you change the orientation of axis of rotation, moment of inertia will also change. X axis पर axis है या Y axis पर axis है या Z axis पर axis है, उसके कारण भी फर्क पड़ेगा and moment of inertia will change. Okay, are you understanding? So three major factors are there on which moment of inertia depends: mass of the body, distribution of mass with respect to axis of rotation, and orientation of axis of rotation. Clear cut? सब देखो linked है, radius of gyration इसके साथ में ये भी linked है. Okay, now clearly understood? Fine. Can you tell me, सुनो बात, I have done moment of inertia of discrete system, m1 r1 square, m2, अरे बोलो यार, m3 mn rn square. They were discrete or continuous? Discrete. m1 r1 square, m2 r2 square, m3. पार्टिकल का जनरल फॉर्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. We have moment of inertia of continuous bodies also. Ring. Suppose एक रिंग बनाया मैंने, इधर ध्यान देना. The ring. Okay. I am rotating this ring about this axis, about the center of mass. इसका moment of inertia about the center of mass is mr square. What is m? Mass of the ring. What is r? Radius of the ring. Sir, how did it come? ये याद करना है तुम्हारे को. इसके डेरिवेशंस तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, पहले हुआ करते थे, अभी इन्होंने पोर्शन से निकाल दिया. Very interesting derivations were there, but you don't have, so you have to learn. Understand what's happening? Moment of inertia for a ring about this axis is mr square. डिस्क के लिए डिस्क हो, moment of inertia of the disk about a given axis of rotation passing through a center of mass is mr square by 2. What is it? Disk. Are you understanding? The disk is mr square by 2. Third one, solid sphere. Solid sphere मतलब हमारा अर्थ की तरह ना. Yes. Moment of inertia about this axis is 2 by 5 mr square. What is it? What is it? 2 by 5 mr. आपको याद करना है भाई, मोशन से उन्होंने निकाल दिया. अगर आप जेई में जाएंगे या वो टाइम पे डेरिवेशन आपको करना है, मगर इधर डेरिवेशन का जरूरत नहीं है. सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 by 5 mr square. हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब अंदर से क्या है? अरे खाली है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 by 3 mr square. What is it? 2 by 3 mr square. ये सब आपको आना चाहिए. नेक्स्ट, moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing a center of mass is ml square by 12. L is the length. ml square by 12. Moment of inertia, this is rod. Then we have moment of inertia for a solid cylinder. Solid cylinder, can I say? ये ऐसे अंदर से भरा हुआ है. Can I say it is like a disc only?
सेम आंसर, आंसर सेम रहेगा, इतना याद रखना अभी. Hollow cylinder. Hollow cylinder, can I say it will be like a ring? अरे अंदर से खाली है ना भाई, इसको थोड़ा पतला कर देंगे तो रिंग की तरह बन जाएगा. So what will be moment of inertia about that axis? M R square. So moment of inertia for a ring about an axis passing a center of mass is mr square. Mr square by 2. Solid sphere is 2 by 5 mr square. Hollow sphere is 2 by 3 mr square. Rod is ml square by 12. Solid cylinder is mr square by 2. Hollow cylinder is mr square. अच्छा, अभी इसका k निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, k कैसे निकालते हैं इसका. You know, I का जनरल फॉर्मूला was m1 r1 square plus m2 r2 square and the second formula was mk square. तो can I equate this formula with mk square? ये एक जनरल बॉडी का फॉर्मूला है. Can I equate this formula with mk square? So m and m will cancel. So can I say k for a ring is r? Yes or no, beta? What is radius of gyration for a ring? Equal to r. About an axis passing through the center of mass. Where is the axis passing through the center of mass? अच्छा, इसको अगर मैं k से mk square से equate करूं, तो this k will be r by root 2. इसको अगर मैं mk square से equate करूं, तो k is going to become root of 2 by 5 r. इसको अगर मैं mk square से equate करूं, so k is going to become root of 2 by 3 r. इसको अगर मैं mk square से equate करूं, तो k is going to become l by root 12. इसको अगर हम mk square से equate करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, r by root 2, सेम आंसर. एंड इसका क्या हो जाएगा, k r ना. Are you understanding what's happening? So k for a ring. अच्छा, कैसे याद रखेंगे? You know what are the coefficients of these? 1 half 2 by 5. अरे बोलो यार, 2 by 3 1 by 12 half 1. K will be root of the coefficient into r or into L if it is a rod. अरे लुक ना बाबा, तो रिंग का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो रूट 1 इंटू आर. सॉलिड स्फीयर का कोएफिशिएंट कितना है 2 by 5, सो विल बी रूट 2 by 5 इंटू आर. रॉड का कोएफिशिएंट कितना है 1 by 12, सो विल बी 1 by रूट ऑफ 12 इंटू एल, बिकॉज आर नहीं होता है. You understanding what's happening? So this is very much important for your portion. You should know. We are doing kinetic energy of a rotating body. Before discussing kinetic energy of a rotating body, I will like to discuss kinetic energy of a particle about a given point. इधर ध्यान देना. Suppose एक बॉडी है जो गोल घूम रहा है, ये पार्टिकल है, मास m, वेलोसिटी v, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम थोड़ा. ये हमारा रेडियस r और हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बराबर है. अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं एक बॉडी की, मैं अगर कहूं अनीश जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला क्या कहेंगे आप? कौन सा फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर. आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. ये बॉडी को भी, अगर ये पार्टिकल को अगर इस पॉइंट से हमको देखना है, अगर हम देख रहे हैं, तो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. एम इज द मास. सुनना, इसको यूज होगा उधर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन रोटेटिंग बॉडी. हम यहां पर किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं पार्टिकल की, अबाउट अ गिवन पॉइंट. अगर हम एक स्ट्रेट वाली बॉडी को देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर. कैन आई से v इज आर ओमेगा. जब पार्टिकल सर्कल में जा रहा है तो v विल बिकम r ओमेगा. ओमेगा इज d थीटा बाई dt, ये पता है हमको. तो कैन आई डू वन थिंग, कैन आई से हाफ m, v is r omega, so can I square will become r square omega square. What is mr square beta? I. Moment of inertia of this particle about this point
इज व्हाट आई ना, और ये ओमेगा से घूम रहा है ना. सो कैन आई से दिस विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट. समझ में आ रही है क्या किया मैंने? हाफ एम स्क्वायर निकाला. अगर बॉडी सीधा सीधा चलता तो v विल रिमेन v, मगर बॉडी पार्टिकल गोल घूम रहा था तो हमको मालूम है नॉलेज ऑफ सर्कुलर मोशन से v इज इक्वल टू r ओमेगा. बट mr स्क्वायर वी हैव डिफाइंड इन आवर चैप्टर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल. एक पार्टिकल याद है ना m1 r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का m2 r, तो एक पार्टिकल का कितना रहेगा mr स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ओके of a particle about a given point is half I omega square. अच्छा इधर क्या सिग्निफिकेंस लिया हमने लिया सिग्निफिकेंस जो रोल मास प्ले कर रहा था लीनियर मोशन में, वही रोल क्या हो रहा है आई प्ले कर रहा है कौन से मोशन में? रोटेशनल मोशन. वी हैज टेकन द प्लेस ऑफ ओमेगा. यू ऑल नो दिस नॉलेज राइट. वी ने किसका जगह ले लिया? ओमेगा ने. तो आई एम ने किसका जगह ले लिया? आई ने. m क्या कर रहा है? m इज द इनर्शिया इन लीनियर मोशन. वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया इन विच मोशन? रोटेशनल मोशन. एंड दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. तो इसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होगी. यूनिट विल बी जूल्स एंड जूल्स. क्लियर कट अंडरस्टूड दिस थिंग. हम आगे बढ़ते हैं इसमें. Our chapter says we need kinetic energy of a rotating body about a given axis. कोई भी हम एक rigid body लेते हैं. You can imagine this to be anything. फैन का ब्लेड हो या कोई भी हो, you can imagine. About this point, it is rotating with an angle of velocity omega. Is rotating with an angle of velocity what? Omega. तो हम बात कर सकते हैं यहां पर कि can I say there are different particles located at different distances. Are you getting my point? Can I say this is m1 located at r1 distance from the axis of rotation. So इसका velocity कितना रहेगा बेटा? v1. And v1 और r1 के बीच में angle 90 है ना. You know every particle for a rotating body is going to move in circular motion. भाई ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे जा रही है ये. तो you can say every particle is moving in circular motion. And circular motion का concept क्या है कि ये velocity tangential रहेगा और ये radius vector radial रहेगा. So the angle between tangential and radial will become 90 degrees. You know this. ये क्या रहेगा? v2. ये क्या है? r2. And this particle name m2. Can I name this as mn, rn beta, and this will be vn, and this will be this, and they all are moving in circles. अलग अलग सर्कल्स रहेंगे मगर सब सर्कलों का सेंटर यही रहेगा. एंड वो सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स को हमने नाम दिया हमारे लैंग्वेज में एक्सिस ऑफ रोटेशन. आज द प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था हमने. सबको समझ में आ रही है बात? एंड ओमेगा कांस्टेंट है बिकॉज इट इज अ रिजिड बॉडी. The distance between two particles will always remain constant. ये R1 ही रहेगा पूरे सर्कल में, R2 ही रहेगा पूरे सर्कल में, R3. Okay, fine, no problem. Are you understanding what's happening? I'm starting with the derivation of kinetic energy for a rotating body. सबसे पहले हम निकालेंगे first step, velocity of each particle. अच्छा भाई, स्टार्टिंग में हम पूरे बॉडी की बात नहीं करेंगे. We will talk about each and every particle. Then I will talk about the body because body is a system of particle. We'll talk about particle. सब particle के configurations हमको मिल गए, फिर हम उसको जोड़ देंगे तो will become a system of particles. That is our rotating body. तो हम लोग पहले each and every particle की बात करेंगे. अच्छा, लुक एट ईच एंड एवरी पार्टिकल. सिर्फ पार्टिकल की तरफ देखो, कोई भी एक पार्टिकल की तरफ देखो, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है भाई? वो सर्कुलर. व्हाट इज वी का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर मोशन? आर ओमेगा. यू नो इट, ही इज आर ओमेगा. कैन आई से v1 r1 ओमेगा? ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखने का, याद है ना भाई, रिजिड बॉडी है. v2 r2 ओमेगा, vn rn ओमेगा,
and direction of v is tangential, direction of r is radial, and direction of omega is axial. Anti-clockwise outside, clockwise inside, ऐसे outside, ऐसे inside. पता है हमको सर्कुलर मोशन के नॉलेज से. हमने ईच एंड एवरी पार्टिकल की बात की, एंड ये डेरिवेशंस आते ही है एग्जामिनेशन में, प्लीज ध्यान दीजिए. सेकेंड पार्ट, कैन आई से व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल. हमको जो नॉलेज है, अगर हम पार्टिकल को देखें तो क्या उसके पास m है, क्या उसके पास v है. कैन आई से इट इज हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर. कैन आई से 1 1 1. अरे है ना भाई. बट व्हाट इज v1? r1 ओमेगा. सब्स्टिट्यूट हियर. सो कैन आई से इट बिकम हाफ m1. अरे बोलो यार, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अभी दूसरे वाले पार्टिकल की तरफ देखो, हाफ m2 v2 स्क्वायर विल बिकम हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. Similarly, nth particle, if you see, half mn vn square half mn rn square omega square is possessing kinetic energy also. हमने v को r ओमेगा के टर्म्स में लिखा ना भाई, क्योंकि बॉडी गोल घूम रहा था, एंड गोल घूमने में v इज इक्वल टू r ओमेगा. खाली v नहीं लिया, v का फॉर्मूला माने में r ओमेगा. अगर लीनियर होता तो v होता, मगर अगर सर्कुलर है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा. दिस इज ईच एंड एवरी पार्टिकल. What do I need? I need for a rigid rotating body about this axis. So can I say the third step? The third step will be kinetic energy of the whole rotating body about that given axis. And rotating body is nothing but system of particles. The whole system of particles. So kinetic energy total will be ke1 plus 2 plus n. Can I say half? इसमें ये सबको जोड़ना है. हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है. हाफ ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन. ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इट विल कम mn rn स्क्वायर. And you know m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square is I. So kinetic energy of the rigid rotating body about that given axis of rotation is half I omega square. जो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुआ करता था, एक बॉडी सीधा चल रही है, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. m का जगह ले लिया I ने, v का जगह ले लिया ओमेगा ने. सो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. हाफ I ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा मेरी बात सुनो, न्यूमेरिकल्स में कैसे आता है I? सपोज ये जो घूमने वाली बॉडी है वो अर्थ है. अर्थ इज अ होलो स्फीयर और अ सॉलिड स्फीयर. I की जगह आई विल पुट 2/5 mr स्क्वायर. सपोज घूमने वाला जो है वो ये है, रॉड है अबाउट दिस एक्सिस, तो I की जगह हम डालेंगे ml स्क्वायर बाई 12. I के नहीं, ml स्क्वायर बाई 12. घूमने वाला जो है वो एक डिस्क है, इधर डालेंगे mr स्क्वायर बाई 2. Are you understanding? So you know all the corresponding I's of different bodies. जो भी corresponding I दिया हुआ है बॉडी के हिसाब से in numericals you can put it the value over here and everything else will be given. You can get kinetic energy of that rotating body in joules. You understanding what's happening? ध्यान दो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. This question is asked in the exam for 3 marks. इस डायग्राम सबसे पहला स्टेप v निकालना है सबका. पार्टिकल की तरफ देखना है हमको. जैसे हम डार्ट गेम में कैसा बुलजाई की तरफ देखते हैं, एक पार्टिकल की तरफ देखते हैं, वैसे हर पार्टिकल की तरफ देखना है, एंड में जोड़ देना है. बॉडी की तरफ कभी भी नहीं देखना. ओके, पार्टिकल की तरफ देखेंगे
v is r omega, v is r omega, v is r omega इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल तो मालूम होना चाहिए ना, तो ही तो बॉडी का मिलेगा भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस हाफ m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m3 v3 स्क्वायर, फिर सबको जोड़ देंगे तो हमको बॉडी का मिल जाएगा, बिकॉज बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यू अंडरस्टैंडिंग? सो डेरिवेशन कैसे निकला? आई हैव मेड अ शॉर्टकट ओवर हियर। सबसे पहला स्टेप विल बी v, सेकेंड स्टेप विल बी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यू कैन रिमेंबर विकी फॉर दिस डेरिवेशन। इफ यू रिमेंबर द शॉर्टकट विकी, पहला स्टेप क्या रहेगा v, दूसरा स्टेप क्या रहेगा k, तीसरा स्टेप में आपको जोड़ देना है। फॉर अ रोटेटिंग बॉडी व्हाट इज v, r omega, r1 omega, r2 omega, and omega is constant because it is a rigid body. Kinetic energy will become half mv square, so m1 v1 square उसको ऊपर से उठा के, and third step में क्या रहेगा, आपको क्या करना है, जोड़ देना, because normally what happens in the examination you forget the steps. तो नाम याद रखेंगे विकी एटलीस्ट, तो आपको याद रहेगा कि पहला स्टेप रहेगा v, सेकंड स्टेप रहेगा k, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जोड़ देना। राइट नाउ वी आर डूइंग एंगुलर मोमेंटम। ओके, हमने पढ़ा है व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी, एक पार्टिकल m, मास m का सीधा चल रहा है। व्हाट क्वांटिटीज विल दिस बॉडी हैव? काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, हाफ mv स्क्वायर तो रहेगा, अरे जो हमने पहले पढ़ा है यार। उसके बाद मोमेंटम भी रहेगा। मोमेंटम इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम, एंड दैट लीनियर मोमेंटम इज mv। Linear momentum is denoted by the letter P, which is mv। ये आपको आना चाहिए भाई। अभी हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। सुनना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बुक के अंदर सिर्फ दिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सपोज, इधर ध्यान देना, सपोज एक पॉइंट है मास m का, वो ऐसे चल रहा है ऐसे। आप इधर से ये बॉडी को देख रहे हैं with your point of observation here. Can I say if the line joining from this point to this point is r, ये r है, बराबर है। ये बॉडी कहां जाने वाला है मुझे बताइए जरा, कैसे जाएगा ये बॉडी? स्ट्रेट। मींस आफ्टर सम टाइम ही इज गोइंग टू कम हियर द सेम वेलोसिटी v, but with respect to me, can I say he is traced an angle theta at point O? अरे बाबा देखो ना यार, तो with respect to me he is tracing some angle। एंगल मतलब लीनियर मोशन में गया कि एंगुलर मोशन में गया? एंगुलर मोशन। तो इधर वर्ड लीनियर मोमेंटम आएगा क्या एंगुलर मोमेंटम आएगा? एंगुलर मोमेंटम। मेरी बात सुन लो। ओके, सपोज सुमेश यहां पर है, मेरे हिसाब से ये है ना, इधर ये इस तरफ चलकर आया है, रोहन की तरफ ऐसे चलकर आया। ओके, इफ दैट गाय राज लुकिंग एट सुमेश, उसके कारण वो सीधा जा रहा है। मगर मेरे हिसाब से इफ दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड वो इधर जगह पर आ रहा है, तो कैन आई से दिस रेडियस वेक्टर इज ट्रेसिंग सम एंगल थीटा एट द सेंटर। क्या हुआ भाई, एंगल बना कि नहीं बना? ओके, समझ में आ रही है कंसेप्ट आपको? एंगल बना, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है। राज ने इसको देखा लीनियर मोमेंटम, मैंने इसको देखा इधर था, इधर आ गया, इसने एंगल बनाया, और आगे गया, इधर एंगल बनाया, और आगे गया। देखो कंटिन्यूअस एंगल चेंज हो रहा है। क्या आएगा? एंगल में एंगुलर मोशन आता है ना, एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम आएगा। समझ में आ रही है एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया जाता है? ये हमसे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कुछ पता तो रहता नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सब लोग इधर ध्यान देना, प्लीज पे अटेंशन टू मी। ये समझ में आ गया आपको? इसको और एक एक्सटेंशन डायग्राम बनाता हूं मैं, इधर ध्यान देना सब लोग। ये वही mv था,
ओके, बनाते हैं इधर एम बी, ये एम और ये वी, और मैं इधर हूं ओ, ये आर है ना. कैन आई से लेट दिस एंगल बिटवीन आर एंड वी बी थीटा. कितना एंगल लिया बेटा मैंने? थीटा. और वी के बीच में कितना एंगल था? थीटा. अरे सर्कुलर मोशन में भी आर स्टैंड फॉर रेडियस वेक्टर, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी वेक्टर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड वी? 90. ओ ये एंगल लिया था ना हमने. एक टेंजेंशियल है, एक रेडियल है, एंगल थीटा लिया कि नहीं? यहाँ पे. अच्छा मेरी बात सुनो. कैन आई रिजॉल्व वी इनटू टू कंपोनेंट्स? वी को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा. ये कंपोनेंट सुनो, ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, बिकॉज ये थीटा बना रहा है. ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा. ये दिख रहा है? बराबर दिख रहा है? अभी इसको देखने के बाद सर्कुलर मोशन की तरफ देखो. ये सर्कुलर मोशन है, ये आर है, ये पार्टिकल है, ये वी है, ये. कैन आई से वी is perpendicular to R and because of this V it rotates in circle. कोई बता सकता है यहां पर कौन से V के कारण वो घूमेगा? V cos के V sin? V cos तो ये लाइन को खींच रहा है ना. V sin क्या करेगा? इसको गोल घुमाएगा ना. देखो ना ऐसे. तो एंगल किसके कारण बन रहा है भाई? वी साइन के कारण बन रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग? इन दिस एंगल इज 90 ना. देखो ना यार, ये जो वी था इधर जगह वी साइन थीटा ने लिया, आर आर. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहेगा एम. वी की जगह क्या आएगा बेटा? वी साइन थीटा इनटू आर. ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एम वी आर साइन थीटा. आर यू गेटिंग इट? यहां पे क्या बनेगा? एम वी आर साइन 90 1. तो यहां का एंगुलर मोमेंटम विल बिकम एम वी आर, बिकॉज वी इज नॉट वी साइन थीटा ना. वी इज वी. और थोड़ा सिनेरियो बताऊं मैं आपको. सपोज ये, सुनो मेरी बात सुनो, सपोज ये स्ट्रिंग ना होके स्प्रिंग होता. क्या होता बेटा? स्प्रिंग. सुनो सुनो इधर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. स्प्रिंग होता है. एक काम करो, एक स्प्रिंग लो आप और उसको घुमाओ. स्प्रिंग को क्या होगा? स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा ना वो. कैन आई से वी कॉस थीटा वो कंपोनेंट रहेगा जो उसको खींचेगा, और वी साइन थीटा वो कंपोनेंट रहेगा जो उसको घुमाएगा. पिक्चर क्लियर हो रहा है? ये फिजिक्स है भाई. ओके, ये रियल फिजिक्स है. वी कॉस थीटा इसको खींचेगा और वी साइन थीटा इसको घुमाएगा. अच्छा, घुमाने वाले कंपोनेंट को हम लोग एंगुलर कहते हैं. ये कंपोनेंट हमको लेना है वी साइन थीटा. खींचने वाले कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? इसको आर ही रखते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम. अच्छा, इसको और एक दूसरे सिनेरियो से मैं प्रूव करता हूं. यही सेम चीज सुन लो. ये एम वी, देखा, ध्यान देना. एम वी, ये इधर हूं मैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ, ये आर है, ये एंगल थीटा है. मैंने यहां पर किसको तोड़ा था दो पार्ट में? वी को. मेरे को वी को नहीं तोड़ना है, मेरे को आर को तोड़ना है. You can break any one of them actually. You can break the R also and you can break the V also. मैंने यहां पर किसको तोड़ा? V को तोड़ा. मुझे V को नहीं तोड़ना है, मुझे R को तोड़ना है. Can I take V पीछे? समझ में आ रही है बात? Can I say if this is theta, this will also be theta? तो ये कंपोनेंट हो जाएगा R sin थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा. समझ में नहीं आ रही है? है, समझ में आ रही है? अच्छा, V से परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? R cos के R sin? V से R sin परपेंडिकुलर है ना भाई. तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? M V R sin थीटा. कैन आई गेट यू द सेम आंसर?
Can I make a new formula? Can I say angular momentum is mv into r perpendicular? mv into that perpendicular which is r. What is it? mv into r perpendicular. mv into r perpendicular. अगर आप mv r sin theta भी याद करो चलेगा, अगर आप mv r perpendicular याद करो तो भी चलेगा. Anyone? mv r sin theta, theta 90 ना यार, सर्कुलर मोशन में थीटा कितना होता है 90, तो mv r sin 90 mv r, और you can remember mv r perpendicular also, it's okay. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा कि स्केलर क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू नो साइन थीटा कम्स इन द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ये भी नहीं आता क्या तुम लोग है 11th? साइन थीटा कम्स इन क्रॉस प्रोडक्ट. अच्छा, यू नो एम बी इज पी, तो एक्चुअल फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज पी आर साइन थीटा. एंगुलर मोमेंटम एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. अरे एम वी इज पी ना यार, तो आर बार क्रॉस पी बार. आर बार का डायरेक्शन रेडियल, पी बार का डायरेक्शन टेंजेंशियल, तो एल बार का डायरेक्शन एक्सियल. कैसे आएगा? मैंने आपको स्केलर वेक्टर्स में बताया था, राइट हैंड को दो हिस्सों में तोड़ो. पार्ट 1 वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3. तो हमको कहां से कहां तक घुमाना है? आर से पी तक. ये आर था, ये पी है, तो आई विल टेक माई फिंगर एंड मूव फ्रॉम आर टू पी. तो वेयर विल द थंब गो? इनसाइड ना. अरे भाई ये मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल कैसे घूमने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है कि क्लॉकवाइज घूमने वाला? एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड. तो इनसाइड है ना भाई, देखो ना ऐसे इनसाइड. ये अगर ऐसे घूमता तो बाहर होता. मतलब एंगुलर मोमेंटम, कैन आई से एंगुलर मोमेंटम इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा. Omega, theta, angular momentum is also the same. Anti-clockwise outside, clockwise inside. This was angular momentum about any given point. मेरी बात सुन लो, इसका टॉपिक का नाम क्या रहेगा? Angular momentum about a given point. हाँ, याद रखना भाई ये. Angular momentum about any given point. What is the formula? mv r perpendicular, mv r sin theta, p r sin theta. अरे इसका p r sin theta या r बार क्रॉस p बार. जैसे भी आपको याद करना है आप याद करके आएंगे. mv r perpendicular, mv r sin theta, p r sin theta, r bar cross p bar. This is angular momentum about any given point. You getting it? Okay, but we don't have this for portion. पोर्शन में क्या है? सुनो, ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूं? ताकि हमको जो अभी मैं डेरिवेशन करने वाला हूं ना वो आपको समझ आए, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा. आपने 4 पॉइंट रट्टा मार लिया, आपने लिख दिया, कुछ आता नहीं है. अंडरस्टैंड? दिस इज एंगुलर मोमेंटम. अगर आप ओके पूछेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी गिवन पॉइंट, ओके, people should know it is mvr sin theta, or it is mvr perpendicular, or it is pr sin theta. And if theta is 90 in circular motion, it is pr. अभी ध्यान देना इधर. I am defining. अभी ये आ गया, ये डेरिवेशन एकदम इजी हो जाएगा. अभी सुनो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी about a given axis. Given एक एक्सिस के ऊपर एंगुलर मोमेंटम एक बॉडी, रोटेटिंग बॉडी का निकालना है. वही डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. एक एनी रिजिड बॉडी, रोटेटिंग बॉडी हमने ली, ये पॉइंट हमने लिया एज एन एक्सिस ओमेगा ओ. इधर हमने अलग अलग पार्टिकल्स देखे. सही है ना बेटा? ये M1, ये क्या बनाएंगे? ये R1, और ये क्या बनाएंगे? V1 नहीं लिखना है, P1, बिकॉज ये MVP में मिलेगा ना. समझ में आ रहा है? थोड़ा मॉडिफिकेशन करना. ये क्या रहेगा बेटा? M2, P2 प्लस R2. ये क्या रहेगा? MN, PN,
Rn, this will also be 90. And you know all particles are moving in circular motion. Are you understanding? और ये कौन से angular velocity is omega. क्लियर कट समझ में आ रहा है? अभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा. सुनो, एंगुलर मोमेंटम करने के लिए अभी हमको बुलजाई पे देखना है, एक पार्टिकल की तरफ देखना है, पूरी बॉडी की तरफ हम देखेंगे नहीं. सबसे पहले मैं बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल. अरे बोलो यार, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, v का फॉर्मूला क्या है? ईच पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ना, तो v विल बिकम r ओमेगा, r1 ओमेगा. वैसे ही क्या हो जाएगा भाई, vn क्या हो जाएगा बताओ जल्दी यार, rn ओमेगा. कुछ दम नहीं, एकदम इजी है. एक पार्टिकल की तरफ देखा, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल. फिर हमसे वेलोसिटी को हमको मोड़ लेना है मोमेंटम की तरफ, बराबर है? तो हम लीनियर मोमेंटम बनाएंगे. फिर लीनियर मोमेंटम से हम एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे. तो कहना इसे लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल. लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है बेटा? p ना, p इज mv ना. सो p1 will be m1 v1, m1 v1, but v1 is r1 omega ऊपर से, so will be m1 r1 omega. p2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे? m2 r2 ओमेगा. वैसे pn क्या हो जाएगा बोलो यार? mn vn, mn rn ओमेगा. समझ में आ रही है बात कि नहीं? rn ओमेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ इस पॉइंट को हम व्यू कर रहे हैं इस पॉइंट के जरिए. दिस इज ईच एंड एवरी पार्टिकल अबाउट ओ. तो क्या अबाउट ओ या एंगल ट्रेस करेगा? तो क्या एंगुलर मोमेंटम में बदलेगा लीनियर मोमेंटम? तो कहना इसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल. इधर ध्यान देना. अभी एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है L, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल का पूरा कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा. फॉर्मूलाज क्या थे? mvr sin थीटा. सुनो, mvr sin थीटा, pr sin थीटा, r बार क्रॉस p बार. कैन आई टेक pr sin थीटा? p हमको मालूम है ना. कैन आई से L का फॉर्मूला इज mvr sin थीटा. m इज मास, और सॉरी pr sin थीटा. p इज मोमेंटम जो हमको पता है, r हमको मालूम है रेडियस वेक्टर साइन थीटा. अच्छा, हमको मालूम है ईच एंड एवरी पार्टिकल आर गोइंग टू मूव इन सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन में एंगल बिटवीन p एंड r इज 90. सो थीटा ओवर हियर इज 90. सर्किल है ना भाई? तो कहना इसे L इज इक्वल टू pr. बोलो यार, एलिप्स बेलिप्स होता तो अलग होता, ये तो सर्कल है. तो कहना इसे L1 विल बी p1 r1. But you know P1 is M1 R1 omega into R1 is going to become M1 R1 square omega. Ln is going to become Pn into Rn is going to become Mn Rn square omega. मगर ये each and every particle है भाई. हमको क्या चाहिए? बॉडी, system of particles. So can I say total angular momentum about that given axis O, or I can say about O. सही है ना? will be L total will be L1 plus L2 plus a dot 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 Ln. So L total is going to become, common क्या है इसमें बेटा? ओमेगा. ये क्या है? I. So angular momentum is I omega. This is angular momentum of a rigid body about a given axis. What is angular momentum of a point about a given point, of a particle about a given point? mvr sin theta. फर्क है ना, कुछ भी सेम नहीं होता है. ओके, स्टूडेंट को पता नहीं रहता, लोग सोचते हैं सेम है mvr sin theta सेम एज I ओमेगा. अरे व्हाट? ओके,
सेम बन सकता है बिकॉज एम आर स्क्वायर इज ओमेगा, एम आर स्क्वायर इज आई, बट इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इफ आई गिव यू अर्थ revolving about the sun and earth rotating about its own axis, मैं बोलूं इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, इसका बताओ मुझे, mvr sin 90, इसका क्या बताएंगे? आई ओमेगा। फर्क है ना बेटा, दिस इज एल स्पिन एंड दिस इज एल ऑर्बिटल। हमको फर्क ही मालूम नहीं रहता तो हम क्या करेंगे? बुक में डेरिवेशन ये है, mvr sin थीटा का कोई जिक्र नहीं है, बोला ही नहीं, कुछ बताया नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमको मालूम होना चाहिए, और हमको एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आई थिंक सो टुडे इज क्लियर। आई हैव टेकन मोर टाइम, बट दैट डजंट मैटर एनीथिंग। तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, खाली 2-4 चीज याद करके कंसेप्ट कुछ आता नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पहला स्टेप इसमें डायग्राम बनाओ। पहला स्टेप वी रहेगा, दूसरा स्टेप पी रहेगा, तीसरा स्टेप एल रहेगा, एंड सबको क्या करना है? जोड़ देना है। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ओके, तो फर्स्ट स्टेप पी, सेकंड स्टेप पी, थर्ड स्टेप एल। ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना तुम। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज वी, सेकंड स्टेप इज पी, थर्ड क्या होगा? ये अगर आपने नाम याद किया तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे और कुछ नहीं। एग्जामिनेशन में यू विल नॉट फॉरगेट, पी पहले लेना है, पी क्या, एल बाद में। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? वी की से क्या? वी के। थर्ड स्टेप में क्या करना है? जोड़ देना है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वी आर ओमेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा? पी इज एम वी, थर्ड स्टेप इज एल, एल इज पी आर साइन थीटा, और फोर्थ स्टेप में क्या करना है? जोड़ देना है। Are you understanding what's happening? So this completes your angular momentum of a rotating body about any given axis of rotation.